बेटा बातें बंद कर देंगे, अब बातें बंद कर देंगे. As such we are late to begin with the things. Now today we are doing on page number 80 sum number 11. Page 80 पर sum number 11. Take up your pencil. Let's start with the bifurcation. Page 80, sum number 11. Capital account of Salim and Shabana. Capital account of Salim and Shabana. अब देखो, उसी के नीचे है पार्टनर्स करंट अकाउंट है. So we don't need to make our capital account separately. कैपिटल हम सीधा बैलेंस शीट में लिख देंगे. विल बी डायरेक्टली राइटिंग इट इन द बैलेंस शीट. सीधा कहाँ लिख देंगे हम? तो वहां पर लिख दो कैपिटल विल गो टू बैलेंस शीट. देन करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट विल गो टू पार्टनर्स करंट. Then stock of goods on 31/3/2017. Stock of goods. Asset. Stock of goods will go to asset. Then cash balance. Cash balance. Asset again. Current account with bank. यहाँ से current account with bank is bank balance, which will go to which would go to asset. Then fixed deposit with SBI. Asset again. Debtor creditor. Asset and liability. Debtor and creditor. Asset and liability. Salary. Profit and loss. Land and building. Asset. Plant and machinery. Asset. Furniture. Asset. Then insurance premium. P&L. Then leasehold machinery. Asset. Stationery printing. Profit and loss. Bad debt and bad debt reserve. P&L. Then advertisement expense. P&L. Traveling expense. P&L. Then trading account को start करो. We need to draw revised trading account. revised trading account बनाना पड़ेगा because 2-3 adjustment है जो इसमें जाने वाले हैं. Then loan of Shabana. Liability. और डिस्काउंट रिजर्व को स्टार करो. मैं बताऊंगा कहां जाएगा. डिस्काउंट रिजर्व को हम स्टार करेंगे. I'll tell you where it will go. Sure. एडजस्टमेंट्स को टिक करेंगे. एडजस्टमेंट्स सलीम ने ड्राइंग्स करे हैं तो I'll tell you where it will go. गुड्स परचेस किए हुए हैं तो उसका भी अभी हम कहीं टिक नहीं कर पाएंगे. थर्ड इज प्रीपेड इंश्योरेंस. तो इंश्योरेंस को टिक करो. प्रीपेड इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस को टिक करो. देन डेटर्स को टिक करो. डेटर्स. बैड डेट रिजर्व को टिक करो. डिस्काउंट रिजर्व को टिक करो. અને પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી અને ફર્નિચર को टिक करो. प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर को टिक करो. देखा फर्स्ट बेंच पर आ जाओ. 2 जन की जगह है. फर्स्ट बेंच. प्रथम तेरे को इधर आना हो तो इधर जगह दिख रही थोड़ी. ભાઈ હવે કોઈને આવવા નથી દેવાનું ભાઈ. બહાર જ ઊભા રાખજો. આ સેટ કરી દે હવે. Better start making the format. Come on. Start making the format.
revised trading account, revised trading account of Salim and Shabana for the year ending on 31/3/17. Particulars: डेबिट. बेटा छोटा सा ही रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ. Then we draw partners current account on that page. Partners current account, date, particulars: Salim, Shabana, date, particulars: Salim, Shabana. Then we make profit and loss account. Profit and loss account of Salim and Shabana for the year ending on 31/3/17. Particulars: amount, this is debit. Particulars: amount, credit. Okay, and lastly we draw is the balance sheet as on 31/3/17. Balance sheet, liabilities amount, asset amount. Asset is debit, liability is credit. Asset is debit, liability is credit. But I'm done with the format. Shall we start with the sum? I am done with the format. Shall we start with the sum? बेटा स्टार्ट करो. बेटा स्टार्ट करो. बेटा स्टार्ट करो. Let's begin. Capital account of Salim and Shabana. As we are making current account,
there's no need to make capital account because all the adjustments related to partner will be showing it in. All the adjustment related to partners will be showing it in current account. So सीधा ही हम कहाँ लिख देंगे? लिखा जाए, चलो कैपिटल अकाउंट किस तक P&L अप्रोप्रिएशन? मैंने नहीं बनाया P&L अप्रोप्रिएशन, जरूरत भी नहीं है इसलिए नहीं बनाया। होशियार तुम अपने आप को क्यों समझते हो? Salim 1,60,000. Didn't you people read the adjustment along with me? There is no adjustment which will have any effect on P&L appropriation. तुमने बना लिया ना? अरे जाओ यार, झूठ मत बोलो। तुम बना के मेरे सामने होशियारी मारने चले थे। सर भूल गए, देखो भूल गए आप। दाव उन दो बड़ी कैपिटल अकाउंट हमने सीधा बैलेंस शीट में लिख देना है। देन फिर देखो करंट अकाउंट सलीम का करंट अकाउंट का बैलेंस इज ऑन द डेबिट साइड एंड शबाना डेबिट साइड के क्रेडिट। सो वी राइट अकॉर्डिंगली, राइट 1,416 to opening balance Salim 10,000, then 1,416 by opening balance Shabana 40,000. Then stock of goods 31,317, 54,600. Stock of goods 54,600. $54,600 stock of goods, 54,600. Then cash balance will come on the asset side. Cash balance 560. Then current account with bank. Current account with bank 14,000. Then fixed deposit with SBI, all going on the asset side. Fixed deposit with SBI, how much is the amount? 80,000. Fixed deposit with SBI 80,000. Then debtors 36,800, we write it in the inner column. Creditors 24,000, we again write it in the inner column. Then we have salary 37,000, we have salary. Land and building 1,20,000. Plant and machinery 40,000. उसमें एडजस्टमेंट है, so we write it in the inner column, plant and machinery. Then even we have adjustment with furniture, the 10,000 inner column. Insurance premium
will go to P&L. How much is the amount? 2000. We write that also in the inner column. Then leasehold machinery, hidden adjustment. Leasehold machinery, we have a hidden adjustment 60,000, and 1 for 16, so we have taken it for 5 years. Then stationery and printing. Stationery and printing 1200. बेटा यहां तक मैं वेट कर रहा हूं, तुम लोग पहुंच जाओ स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग तक. आई एम वेटिंग फॉर यू. स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग. यहां से देन बैकडेट एंड बैकडेट रिजर्व के लिए क्या करें? बैकडेट एंड बैकडेट रिजर्व. यहां से TAAT का टेबल बनाओ. Backdate as per trial balance, backdate as per adjustment, BDR as per adjustment less BDR as per trial balance. Now what is backdate as per trial balance? Backdate as per trial balance and backdate reserve कितना है? 2000. Backdate reserve अपना कितना है? 2000. Then advertisement expense, how much? Advertisement expense 1200. Then traveling expense. Traveling expense कितना? 800. अब बेटा देखो नेक्स्ट आइटम कौन सी है? नेक्स्ट आइटम कौन सी है? ट्रेडिंग अकाउंट. मतलब हमने देखो ट्रेडिंग अकाउंट पहले से बना के हमने प्रॉफिट ढूंढ लिया था, लेकिन दो एडजस्टमेंट ऐसे हैं कि जो वापस ट्रेडिंग अकाउंट को अफेक्ट कर रहे हैं. दो एडजस्टमेंट कैसे हैं? जो वापस ट्रेडिंग अकाउंट को क्या कर रहे हैं? अफेक्ट कर रहे हैं. एंड दैट्स द रीजन इन द सम वी हैव टू मेक व्हाट? जरा वहां पर बैलेंस कितना दिया है जरा ट्रेडिंग अकाउंट का चेक करो. 61. इज इट ऑन द डेबिट साइड और ऑन द क्रेडिट साइड? सो लिखा जाए यहां पर बाय बैलेंस 61,800 बाय बैलेंस 61,800. Then next क्या है देखो? लोन ऑफ बनाना. लोन ऑफ राइट इन द इनर कॉलम. लोन ऑफ शबाना. अमाउंट कितनी है और कब लिया? 1/10/16 को. लोन ऑफ शबाना 1/10/2016. અને ડિસ્કાઉન્ટ રિઝર્વ ને હજી સ્ટાર કરીને રાખો. એની ઇફેક્ટ આપણે એટ ધ એન્ડ આપીશું જ્યારે એડજસ્ટમેન્ટ કરશું ત્યારે. બટ આઈ એમ વેઇટિંગ. I am waiting. Please complete all the posting part. Beta, please complete the posting part. Is it done? Is it done? Let's go on to the adjustment. पहला, Salim has withdrawn goods of कितने? For
सेकंड वाला पहले करते हैं, फिर फर्स्ट वाला करते हैं। रीड द सेकंड वन, क्या बोलता है? Goods of rupees 8,000 is purchased, but the entry has not been done. Raise your hand. हमने सामान परचेस किया है। तो अगर सामान परचेस किया है तो उसकी दो इफेक्ट क्या आएगी? सामान परचेस किया है तो उसकी दो इफेक्ट क्या आएगी? बुराउद्दीन, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट और क्रेडिट कार्ड। क्या से ट्रेडिंग में कहाँ लिखना पड़ेगा? भाई ट्रेडिंग में डेबिट। बेटा परचेस कहाँ लिखते हैं यार? परचेस कहाँ लिखते हैं? अच्छा, अगर तुम सामान परचेस कर रहे हो तो पैसा देने का के लेने का? पैसा देने का। इट्स अ पेएबल। सो मेरे को मेरे क्रेडिटर्स को पैसा, बिकॉज हमने सामान गुड्स खरीदा किससे है? क्रेडिटर्स। वी हैव परचेस्ड गुड्स फ्रॉम। तो सेकंड वाले एडजस्टमेंट की पहली इफेक्ट लिखो, चलो, टू परचेस। टू कितनी अमाउंट है? 8,000। क्या कह रहे हैं? तो यहाँ पर भी किधर दिया है ना? अभी कुछ बोला नहीं है, राइट? तो हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि कैश में से दिया है। कैश में तेरे पास उतना पैसा ही नहीं है तो तुम उतना पैसा दे पाओगे? तो इट इज ऑन क्रेडिट, वी अज्यूम दैट कि वो क्रेडिट पर ही है, तो हमने वैसा अज्यूम कर दिया बिकॉज उतना कैश बैलेंस नहीं है कि हम कैश में ले सकें। सो नेक्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगी? क्रेडिटर्स। सो क्रेडिटर्स में प्लस कर दो परचेज। कितनी अमाउंट है? 6,000 के 8,000? So outer column 32,000. Outer column will be 32,000. अब पहले वाले एडजस्टमेंट पर चले जाओ, वहां पर एक करेक्शन है। सलीम के बदले नाम चेंज कर दो, शबाना कर दो वहां पर, तो अपना पीछे से सारे आंसर टैली हो जाएंगे। वहां पर सलीम के बदले लिख दो शबाना। अच्छा, शबाना विड्रू गुड्स ऑफ रुपीज 4,000 फॉर पर्सनल यूज, लेकिन ये हमने रिकॉर्ड। आई वांट जर्नल एंट्री। शबाना ने गुड्स विड्रॉ किया है, आई वांट जर्नल एंट्री। रेज योर हैंड। बेटा आई वांट जर्नल एंट्री। 1 2 बस, 3 4 बस। केविन ड्राइंग्स टू कितने दिन बोलते हैं? ड्राइंग्स टू परचेज। वेरी गुड। गिव द हेडिंग वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1, journal entry for goods. Journal entry for goods withdrawn by Shabana. Journal entry for goods withdrawn by Shabana. तो एंट्री क्या बोली तुमने? एंट्री क्या बोली? ड्राइंग्स टू। अच्छा, ड्राइंग्स कहां बताऊं? लिख लो वहां पर, पहले एंट्री लिख लो। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 4,000। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 4,000 टू परचेज। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 4,000 टू परचेज। नाउ बेटा रेज योर हैंड। ड्राइंग्स कहां बताएं हम? ड्राइंग्स अरे बेटा ड्राइंग्स कहां बताते थे? पार्टनर्स करंट अकाउंट। वेरी गुड, लिखा जाए 31,317 टू ड्राइंग्स
In the column of Shabana 4000 drawings. In the column of Shabana 4000 अरे परचेस में से क्या करूं? लिखा जाए लेस गुड्स withdrawn for पर्सनल यूज 4000. सो आउटर कॉलम पे कितना आएगा? आउटर कॉलम पे कितना आएगा? 4000. आउटर कॉलम विल ऑल्सो बी 4000. ओके ओके. देन थर्ड एडजस्टमेंट जरा देखो. थर्ड एडजस्टमेंट क्या दिया है? प्रीपेड इंश्योरेंस. कितना है प्रीपेड इंश्योरेंस? What do you mean by the word prepaid insurance? Can I say I have paid the insurance in? मतलब in advance का मतलब क्या? It is of which year? Next year का इंश्योरेंस अभी से हमने एडवांस में दे दिया. But what has happened? नेक्स्ट ईयर का प्रीमियम अभी से हमने एडवांस में दे दिया है. तो क्या करंट ईयर में आना चाहिए? करंट ईयर में. इट्स ऑफ विच ईयर? सो करंट ईयर में से क्या करूं? करंट ईयर. सो यहां से माइनस कर दो. प्रीपेड इंश्योरेंस, हाउ मच इज द अमाउंट? सो आउटर कॉलम इट्स 1600. एंड बेटा सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगी? असेट साइड. सेकेंड इफेक्ट because the amount of insurance will be utilized in the next year. The amount of insurance would be utilized in the next year. तो prepaid insurance कितना हो जाएगा? prepaid insurance कितना हो जाएगा? 400. बेटा प्री આવનો કોઈ મતલબ નથી. સમ પતવા એવું કરતા બહાર બેસ તો લોકોને જગ્યા મળશે. પછી આ વિડિયો લેક્ચર લઈ લેજે ભैया. सही में कुछ तेरे को पता नहीं चलेगा. सम खत्म होने हैं. 3 ही एडजस्टमेंट बाकी है. यू आर वेरी लेट. वी स्टार्टेड एट 2:45 and every day we are now starting at 2:45 for your information. So आराम से बाहर बैठ, टेंशन ना ले. इसका वीडियो लेक्चर ले लेना. Next. From the debtors 800 is now not recoverable. Debtor में से 800 is now मतलब अपने को 800 रुपए 800 रुपए अपने को मिलने वाले. उसके बाद अपने को कुछ BDR बनाना है. जरा चेक करो. What's the rate of BDR? 5% we are supposed to make. So let's start. उसकी इफेक्ट देना. पहले डेटर में से क्या करूं? बैड डेट एज पर एडजस्टमेंट हम 800 माइनस करेंगे. सो वी हैव 36,000. डेटर में से 800 माइनस करेंगे तो 36,000. एंड ये 36,000 पर मुझे ऐसा लग रहा है कि the 5% debtor are still doubtful. My 5% are still doubtful. So 1800 मतलब out of 36,000 I feel कि 5% लोग और हमको पैसा फ्यूचर में नहीं दे रहे हैं. तो उसका हम अभी से रिजर्व बना दे रहे हैं. कितना आ रहा है? 34. अरे बेटा इसकी दूसरी इफेक्ट कहां जाएगी? इसकी दूसरी इफेक्ट क्या से fill in the blanks? It's a fill in the blanks. 800 अरे 1800
सो आउटर कॉलम कितना जा रहा है? आउटर कॉलम कितना जा रहा है? 1000. The amount going in the outer column is 1000. बेटा any doubt in this? बेटा फिफ्थ वाला रेड पेन से करना है अपने को, फिफ्थ वाला। Discount reserve on debtors is, discount reserve on debtor is, अब जरा ट्रायल बैलेंस में देखो डिस्काउंट रिजर्व है कितना? ट्रायल बैलेंस में जरा देखो डिस्काउंट रिजर्व है कितना? 760। मतलब ये डिस्काउंट रिजर्व हमने ये जो 760 बनाया है वो है क्या कि हमने जो हमारे प्रॉफिट्स हुआ था उसमें से हमने ये पैसा साइड में निकाल के रिजर्व में डाल दिया। क्या करा? प्रॉफिट में से पैसा निकाल के हमने कहां रख दिया है? रिजर्व में। कौन सा रिजर्व? डिस्काउंट रिजर्व का मतलब क्या कि हमको हमारे डेटर्स पर ऐसा शक था कि जब भी वो आगे फ्यूचर में पैसा देने के लिए आएंगे तो वो हमसे क्या मांगेंगे? वो हमसे क्या मांगेंगे? लेकिन ये जो सारे डेटर्स हैं वो इतने अच्छे हैं कि अब हमसे कोई भी डिस्काउंट मांगने आएगा? हमसे कोई भी वो डिस्काउंट मांगने आएगा? नहीं। तो मैंने जो पहले प्रॉफिट में से पैसे साइड में रख के क्या बनाया था? डिस्काउंट। अब वो रिजर्व बनाने की जरूरत है? क्यों? कैन आई से डेटर हमसे डिस्काउंट मांगने ही नहीं वाले हैं। तो मैंने जो ये पैसा साइड में रखा था रिजर्व का, फ्रॉम माय प्रॉफिट, फ्रॉम माय, नाउ कैन आई से इट्स माय इनकम। जो प्रॉफिट में से हमने पैसा साइड में रखा था वो अपनी क्या हो गई है अब? इनकम। क्यों? क्योंकि उसमें से, इस रिजर्व में से कोई भी मेरे पास डिस्काउंट मांगने आने वाला नहीं है। सो दैट डिस्काउंट रिजर्व विच इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, इट मींस कि रिजर्व्स हम लिखते कहां हैं? रिजर्व्स हम कहां लिखते हैं? लेकिन अब वो रिजर्व नहीं रहा है क्योंकि कोई डिस्काउंट मांगने आने ही नहीं वाला है, तो उसको हमें ट्रांसफर कर देना है किसमें? सो पीएनएल के हमें क्रेडिट साइड लिख देना है कि वो है मेरा डिस्काउंट रिजर्व जो मेरा प्रॉफिट हो गया है। एंड अमाउंट कितना है? 760। अमाउंट कितना है? 760। अब इसकी है ना, स्कूल में शायद तुमको एक ही इफेक्ट बोलेंगे कि एक ही इफेक्ट आती है, पर एक्चुअली इफेक्ट 6 के भी जरा समझो। मैंने लायबिलिटी साइड डिस्काउंट रिजर्व पहले बताना रहता है। लायबिलिटी साइड हम डिस्काउंट रिजर्व बताएंगे 760, लेकिन अब वो रिक्वायर्ड ही नहीं है क्योंकि कोई डिस्काउंट मांगने आने वाला, तो इसको मेरे को लेस कर देने का नहीं, ट्रांसफर कर देने का कहां? એટલે અહીંયાથી એ nil થઈ જાય અને આપણે ક્યાં લખી દઈએ છીએ? PNL માં। એટલે તમારા સ્કૂલના ટીચર એવું જ કહેશે ખાલી એક જ ઇફેક્ટ, પણ એવું નહીં હોતું ભાઈ। તમે રિઝર્વમાં દેખાડેલું હતું પણ હવે એ રિઝર્વની જરૂર નથી। Now that is my income, so from here we subtract it and we show it over here, and this is how we give its two effects. This is how we'll give its two effects. Discount reserve, बड़े श्योर्स हैं? समझ में आ रहा है कि फ्रॉम रिजर्व वी ट्रांसफर इट टू PNL because the reserve is no longer required, nobody is going to come for discount. So whatever the amount kept aside is all my profit. It's all my profit.
बेटा सिक्स्थ एडजस्टमेंट डू इट ऑन योर ओन, डेप्रिसिएशन वाला। बेटा मैंने कर दिया तो तुम्हारी इंसल्ट हो जानी है। बड़ा इजी एडजस्टमेंट है। प्रोवाइड क्या लिखा है, कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है? प्लांट एंड मशीनरी पर 20% और फर्नीचर पर 5%। प्लांट एंड मशीनरी पर पर 20 અને ફર્નિચર પર 5%. So plant and machinery માં છે minus at what rate? 8,000. 32,000. અને ફર્નિચર 5%, so 500. 9500. Beta, where will be its second effect? P&L के डेबिट साइड 2. Depreciation, plant and machinery, how much? Plant and machinery is 8,000 and furniture कितना है? 500. Furniture is 500. Plant and machinery is 8,000 and furniture is 500. Beta, what's the doubt? Beta, what's the doubt? Beta, there are two hidden adjustments. Find out the first two hidden adjustment. लीजोल्ड मशीनरी पहला करिए। चलो लीजोल्ड मशीनरी पहला करिए। हमने ये मशीन भाड़े पर ली हुई है। मशीन कितने में ली हुई है? We have taken it on a rent for how much amount? 60,000. But we have taken it for how many years? 5. Now that 5 years is starting from? 1416. So can I say 31,317 को एक साल खत्म? 14 से लेके 31,3 तक 1 year will be over? Yes. So can I say whatever the rent for 5 years I have paid, out of that 1 year's rent get expire? Yes. 1 year rent get expire. Because for 1 year we have used this machinery. Yes. So वहां से क्या करूं मैं? 1 year का रेंट माइनस। वहां से क्या करें हम? माइनस। अच्छा 1 year का रेंट मिलेगा कैसे? उसकी वर्किंग करूं कि हो जाएगा? हो जाएगा। 60,000 is for 5 years. 12,000 is for 1 year. तो यहाँ से लिखा जाए लेस लीज रिटर्न ऑफ 12,000 ने ब्रैकेट में लिखना हो तो लिख लेना 60,000 divided by 5. 60,000 divided by 5. So amount comes to 48,000. Amount comes to 48,000. And beta, this is rent of a year. Rent of a year. So second effect. This is rent of a year. Can I say P&L के डेबिट साइड 2 lease return of 12,000 and बेटा लास्ट hidden adjustment बताओ। बेटा लास्ट hidden adjustment loan of, so give the heading working note number 2. Working note number 2, calculation of interest on loan. Calculation of interest on loan.
of Shabana. Calculation of interest on loan of Shabana. अब बेटा शबाना ने हमको लोन दिया कब है? हमने उनको बेटा लोन दिया कब है? 1/10/16. सो उसका इंटरेस्ट अगर मैं गिनूं, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ शबाना, तो कैन आई से 1/10/16 से 31/3/17, that is for a period of 6 months. तो 60,000. लेकिन सर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिया ही नहीं है. अरे तुमको याद था? मेरे को लगा अभी 10-12 जितने मन में आए दे दो परसेंट. कितना परसेंट निकलेगा? 6%. तो 6% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6 months. 1800. बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन की दो इफेक्ट बताओ. इंटरेस्ट ऑन लोन लायबिलिटी यानी माइनस, लायबिलिटी प्लस, लेकिन फिर दूसरा पीएनएल. क्यों क्यों क्यों? इट्स अ फाइनेंशियल एक्सपेंस. So interest on loan of Shabana 1800 and loan of Shabana में उसे ऐड करो. Interest on loan 1800 61,800. 61,800. बेटा सीन हिडन सारे कर लिए. लेट्स गो ऑन टू द टोटलिंग पार्ट. कम ऑन, लेट्स गो ऑन टू द टोटलिंग पार्ट. बेटा ये ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल ज्यादा लग रहा है. 61800, the same total on the debit side. 61,800. 57,800 अपना आएगा. बेटा ये जो आला, बेटा इसको रिवाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, क्योंकि ये हमने पहले भी ढूंढ लिया था ना, लेकिन फिर दोबारा फाइंड आउट करना पड़ा. It's a revised gross profit. बेटा ग्रॉस प्रॉफिट की सेकंड इफेक्ट कुठे? पीएनएल मा. So by gross profit 57800. अब बेटा ध्यान लगाना, कुछ कांड होने वाला है. पीएनएल के डेबिट और क्रेडिट का टोटल दो. बता करो. चलो डेबिट और क्रेडिट, उन दोनों का टोटल चाहिए. बेटा डेबिट और क्रेडिट उन दोनों का टोटल चाहिए. डेबिट का 65, क्रेडिट 58,560. बेटा ये तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ गया, मतलब इट विल बी रिजल्टिंग इनटू नाउ लॉस. बेटा देखो अभी दो ही सम करे और उसमें तो लॉस आने लग गया. बेटा कितना आ रहा है लॉस? 6540. क्या ना से 6540. अब इधर समझो, ये जो लॉस है क्या ना से हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन तो नहीं बना रहे हैं. सो ये जो लॉस है वही मेरा क्या है? इट इज नॉट नेट लॉस बट आई कैन से इट्स अ डिविजिबल लॉस, क्योंकि हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन तो नहीं बना रहे, जरूरत ही नहीं पड़ी, कोई एडजस्टमेंट ही नहीं था.
तो सलीम और बेटा अनारकली इसको कैसे लेके जाएंगे? सलीम एंड शबाना, व्हाट्स द रेशियो? कैसे पता चल रहा है? 1:1। सर कहीं आप ही ना होए तो सलीम कैसे है? सलीम 3:2, बनाना 3270। बेटा अभी स्कॉलर बैच जवाब दे देगी। ये लॉस कहां जाएगा? लॉस कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल के करंट। द करंट्स 3270 3270। बेटा तुम शाहजहान को सलीम देखो हैरान कर रहा है। सलीम हैरान कर रहा है। अभी अपन अपने करंट अकाउंट का क्लोजिंग ढूंढेंगे तो सलीम के डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और शबाना क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। ऐसा लग रहा है, देखो ना। अरे देखो। सो बेटा यहाँ पर उसको रेड पेन से करने का है। रेड पेन। अगेन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द रेड पेन्स। 13270 13270 અને એજ બેલેન્સ અહીંયા આવી જશે 1327। सो 31,3 को ये सलीम का क्या बन जाएगा? सलीम का ये क्या बन जाएगा? अब बेटा बहुत ध्यान से सलीम के देखो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था तो ये जो बैलेंस आया है इट्स अ डेबिट बैलेंस। वाई? કેમકે ડેબિટ સાઇડ નું ટોટલ વધારે હોય તો એ જે બેલેન્સ આવ્યું એને શું કહેવાય? ડેબિટ બેલેન્સ। શું કહેવાય? ડેબિટ બેલેન્સ। अच्छा હવે જરા યાદ કરો આ બેલેન્સ ક્લોઝિંગ ઉપાડીને આપણે બેલેન્સ શીટ માં નાખવાનું છે। तो दिस इज डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस। सर डेबिट है कैसे पता चला? If the debit side total is more, it's a debit balance, and the debit balance in the balance sheet goes to तो asset में लिखो सलीम का करंट। बेटा सलीम्स करंट अकाउंट ऐसा 13270 13270। अब बेटा शबाना का क्या सीन लग रहा है? शबाना बेटा क्रेडिट साइड का टोटल मेरे को तो ज्यादा लग रहा है, तुमको क्या लग रहा है? सर हम तो कॉपी मार रहे हैं, हमको कुछ लग नहीं रहा है। इसमें से माइनस करो 3270। तो ये मेरा आया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शबाना 31,3 को। लेकिन मतलब टोटल कई बाजू નું વધારે હતું તો એ જે ક્લોઝિંગ બેલેન્સ આવ્યું છે એ કયું છે? અરે બોલો ના યાર। तो शबाना's current 32730। शबाना's current 32730। अब इधर समझो बेटा, ड्रॉप योर पेन्स। सर आप हमें जानते हो, हम अभी सम कर रहे हैं, आप हमको पूछ रहे हो, मैं जवाब भी दे रहा हूं, लेकिन यही चीज आप 2 घंटे के बाद बैच छूटते वक्त पूछना, नहीं याद होगा। अरे हाँ के ना? अरे हाँ के ना? आ डेबिट बैलेंस છે, આ ક્રેડિટ બેલેન્સ છે, वो મને याद રહેશે। तो હવે અહીંયા ध्यानથી ट्रिक समझो, ट्रिक खास करके उन लोगों के लिए जिनको सिर्फ पास होना है, जिनको पास होना है। आ क्लोजिंग बैलेंस फाइंड કેવી રીતે કરવાનું એમાં કોઈ તકલીફ છે?
पक्की बात? क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करने में कोई तकलीफ है? श्योर? अब इधर ध्यान। बेटा सलीम का क्लोजिंग कौन से हाथ पे था? राइट। शबाना का लेफ्ट। बैलेंस शीट में भी वैसा ही उतर जाएगा, देखो। लेफ्ट शबाना, सलीम राइट। यहाँ प्लीज डेबिट क्रेडिट નું લોજિક ના લગાડતા. તમારે લેફ્ટ રાઈટ જોવાનું છે. સર આવું ક્લોઝિંગ બેલેન્સ માં બધા જ સમમાં એવું હોય? હા, બધા જ સમમાં એવું હશે. करंट की तो बात चल रही थी ना? हाँ. In each and every sum, wherever you find your closing balance on whatever hand in the balance sheet, it will go on the same hand. बेटा 2 કલાક પછી આ યાદ રહેશે, પક્કી વાત છે. હવે ટોટલ માર દો, ચલો બેલેન્સ શીટ નો ટોટલ कर दो. 406530 406530. But is it tallied? Yes. $406,530. अच्छा, ये सम ना देके इसके जैसा एक इलस्ट्रेशन होमवर्क में दू तो हो पाएगा? डोंट डू दिस सम. रिपीट में ये वाला सम मत करो. You do illustration 2. वो तुम्हारा होमवर्क रहेगा. प्लीज मार्क कर लो illustration 2.